Hi, my name is Mayank. So I believe in having a balance in life. There are basically a good and a bad aspect of everything. So my work in terms of photography would depict the both aspect, the good and the bad. If you see the work in my the Thayyam, which can be some scary for someone, and for some it would be like an sacred thing. So my work is basically a depiction of my thought process, which is good and bad at the same time, the light and dark at the same time. I'm Dipan from Kolkata. I am a researcher but also a photographer. My love for photography comes from the fact that I love traveling and exploring new places around India. And from that, I started to share those stories that I see everywhere in the form of the photograph. So it's mainly a hobby, but also like a way for me to share everything that I see to everyone else. And these two photographs, it is exactly the same. The first one, I was on a sea beach. I was actually was on the sea beach to find the crabs. Okay, there are these rare red crabs, and I was trying to capture their relationship with the ecosystem. But instead, I found this very beautiful picture of a mother and her daughter walking on the beach towards the sunset. So there is this beautiful silhouette on them, and it's just this the simple idea of the bonding that draws me, and so I clicked this picture. For the second one, I was in. This is the terracotta temple in Bishnupur, West Bengal. It's a UNESCO heritage site, but also like just walking through the corridors where the light and shadows are playing with each other. It gives you a sort of a tunnel vision from the darkness and to the light. And while walking through the corridors, I saw this little girl running towards the light, the outside of the corridor. So I took this picture to create a tunnel vision for the audience to see this play of light and shadow towards the end of the tunnel. The first one actually I took in color, okay, but I saw that like in the black and white, the image gets much more depth because it's about the relationship, the contrast, but not the color itself. And as for the second one, I intentionally took the image in monochrome because the image is all about the playfulness of the light and shadow and the journey from the darkness to light, which in color it would not be presented the way it is in monochrome. आज मैं इस एग्ज़िबिशन में आई। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट होते हुए हर पिक्चर को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रही थी, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोई भी फ़ोटोग्राफ छोड़ूं नहीं, क्योंकि हर आर्टिस्ट का उसमें अपना एक एफ़र्ट होता है। मैं किसी को भी ऐसे नहीं जाना चाह रही थी कि उन्हें लगे कि हमारी फ़ोटो इन्होंने देखी ही नहीं या समझा ही नहीं, क्योंकि आपका उसमें बहुत टाइम लगा है, आपके थॉट्स लगे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि एक भारत के ना कल्चर को दिखाया आपने। जो थीम है, जो आपने एक साउथ का क्या कहते हैं आप उसको, थय्यम फेस्टिवल को दिखाया है। तो ये जो थय्यम फेस्टिवल है, ये आज की डेट पे अभी ये एक बहुत ही हिडन एक ऐसा रिचुअल है हमारे कंट्री का, जो नहीं लोगों को पता है। खासकर आजकल, अब जब से ये पिक्चर आई हमारी, व्हाट वाज दैट मूवी, कंतारा मूवी आई। कंतारा मूवी आने के बाद लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई, क्योंकि हम लोग इस रिचुअल को बहुत ही एक उसमें रखना चाहते हैं, छुपे हुए अवस्था में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा बिलीव है
कि इससे अगर हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे। ये बहुत सीक्रेटिव चीज़ें हैं और जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करते हुए भी हम इसमें बहुत लोगों को इंक्लूड नहीं करते, बहुत शुद्धि के साथ आते हैं और कहते हैं जिनका गड़बड़ होता है, जिनके कुछ भी माइंड में, वो खुद ही किसी ना किसी रीज़न से वहाँ से मतलब हट ही जाएंगे। तो उत्तराखंड की रहने वाली हूँ मैं, अल्मोड़ा की, बहुत ही पवित्र जगह है, देवभूमि कहते हैं। सो हम लोगों में इसको जागर बोला जाता है, बिल्कुल सेम रिचुअल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे तैयार होने की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरी कम्युनिटी है पंडितों की, वो पंडित ही इसको परफॉर्म करेंगे और आपके घर के अंदर जो भी शुद्ध आत्मा होगी, जैसे हम सारा बैठ जाएंगे और हमारे एक ना म्यूज़िक होता है, फोक म्यूज़िक, थाली को बजा के हम लोग उसको अपनी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं अपने, और हम इनवाइट करते हैं जो भी हम कहते हैं आसपास जो भी देवी देवता है, हमारे कुल देवता, प्लीज़ आइए और हमारे घर में ये खुशी का माहौल है या ये प्रॉब्लम है, आप आइए और आके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। और उसमें से जो भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है उनमें अपने आप ये चीज़ आती है और उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उनका पूरा तरीका बदल जाता है, उन्हें खुद याद नहीं रहता उसके बाद। तो कई लोग जो ये आप आग के ऊपर चल के दिखाना कह रहे हो, वो आग के ऊपर चलते हैं, वो लोहे की गर्म सलाखों को टंग में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं अपने होश में, उन्हें कुछ नहीं पता होता और सब ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है? मैं इसको बहुत दिल से मानती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहली बार देखा बहुत डर गई क्योंकि बच्ची थी, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट आया और मैं इस पे बहुत काम भी करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एनकरेज नहीं किया गया कि ये एक हमारी बहुत हिडन परंपरा है, इसको ना आप यहीं तक रहने दीजिए, इसको शहरों में मत लेके जाइए। बट मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब, और कहीं ना कहीं पूरा भारत देख लिया मैंने एक कमरे के अंदर। तो आप सबको बधाई और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, और मुझे बुलाते रहिएगा प्लीज़।